Dear student, I am going to start ozonolysis of alkene. Ozonolysis of alkene, carbon-carbon bonded with double bond and remain to valency saturated by the hydrogen or group of the atom. Addition of ozone on alkene. First is a double bond is breakdown and ozone molecules add with alkene and form is the ozonoid. This ozonoid break down in the presence of zinc and water in the form of Y pattern. Each carbon bonded with one oxygen. It means after ozonolysis product is carbonyl compound. This carbon is also bonded with one oxygen and formation of second carbonyl compound and the valency of two hydrogen carbon saturated by the hydrogen are group of the atom as CH3. This reactions progress almost 200 Kelvin and this whole process called ozonolysis. Example, ozonolysis of ethene CH2 double bond CH2 carbon bonded with multiple bond double bond. First is O3 molecules ozone add on ethene or alkene range of temperature 200 Kelvin. First is a double bond is breakdown and formation of ozonoid. This ozonoid break down in the pattern of Y cleavage in the presence of zinc and water. Water change into with one oxygen hydrogen peroxide. This carbon bonded with two hydrogen and with one oxygen. It means formation of formaldehyde or methanol HCHO. Second molecules, this carbon bonded with two hydrogen and with one oxygen, then formation of second molecules of methanol or formaldehyde. इसका मीन्स है कि एथीन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें टू मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड और मेथिनल के मिलते हैं. सेकंड एग्जांपल CH3 CH double bond CH2. Name of this unsaturated compound is propene. Addition of ozone on propene, formation of ozonoid. CH3 HC and CH2 200 Kelvin. First is formation of ozonoid and this ozonoid break down in the pattern of Y cleavage in the presence of zinc and water. Water oxidized in a hydrogen peroxide and this carbon bonded with one hydrogen, one oxygen and one alkyl methyl group. Then formation of CH3CHO is called ethanol or acetaldehyde. Second molecules HCO carbon bonded with two hydrogen and one oxygen. This is SCHO methanol or formaldehyde. It means after ozonolysis product here acetaldehyde and formaldehyde. Next example CH3 CH double bond CH CH3. This is called 1 2 3 4
ब्यूट dash to ene. Reaction with ozone, addition of ozone on but to ene. Double bond is a breakdown and formation of ozonoid carbon bonded with symmetrical one hydrogen and one methyl radical, and this is a ozonoid of butene. Ozonoid break down in the presence of zinc and water in the pattern of Y cleavage. Then double bonded carbon here bonded with one oxygen, one hydrogen and one methyl. This is CH3 CHO molecules is called ethanol or acetaldehyde. Second part of ozonoid, carbon bonded with one oxygen, one hydrogen and one alkyl radical. This is also COHCH3. This is also ethanol or acetaldehyde, and water oxidized in the pattern of peroxide H2O2. This is the ozonolysis of but-2-ene. एप्लीकेशन, क्या यूज है इस प्रोसेस का? अब हम आपसे कहते हैं हमें एक एल्कीन है हमारे पास जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है देखते हैं जरा। एसीटोन। सेकंड कौन सा प्रोडक्ट चाहिए हमें? एसिटाल्डिहाइड। अब हमसे कहा गया कि एक एल्कीन है, माना वह एल्कीन एक्स है, उस एल्कीन को हम ओजोन से रिएक्ट करते हैं तो ओजोनॉइड बनता है। उस ओजोनॉइड को जिंक और वाटर से हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पहला किसका है? एसीटोन का, और सेकंड किसका है? एसिटाल्डिहाइड का। देन आइडेंटिफाई ऑफ एक्स एल्कीन। हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वह एल्कीन कौन सा होगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल है। हमें क्या क्या दिया गया है? एसीटोन दिया गया है, एसिटाल्डिहाइड दिया गया है, हमसे केवल एल्कीन पूछा गया है। हम क्या करेंगे? अरे भाई ये कार्बन किससे बॉन्डेड है? डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ये कार्बन किससे बॉन्डेड है? विथ ऑक्सीजन। किसके द्वारा? डबल बॉन्ड से। आप कुछ नहीं करें, आप एसीटोन को बनाएं और किसको बना ले? एसिटाल्डिहाइड को। जैसे आप बनाएंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन को बनाएं, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन को बनाएं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दें। ये कार्बन किससे बॉन्डेड था एसीटोन में? CH3। और क्या था? CH3। सेकंड एसिटाल्डिहाइड के साथ क्या बॉन्डेड था? CH3 एंड H। देखिए मिल गया। क्या नाम होगा? 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट डैश 2 इन। दिस इज अ X 2 मिथाइल ब्यूट डैश 2 इन। तो X कौन सा एल्कीन है? 2 मिथाइल ब्यूट डैश 2 इन है। चलिए इसका हम ओजोनोलिसिस भी सिखा दें आपको। किससे रिएक्शन करते हैं? O3 से करते हैं। क्या होगा पता है ना आपको? ओजोनाइड बन जाएगा। बन गया। डबल बॉन्ड इज अ ब्रेकडाउन। इससे क्या अटैच है? 1 मिथाइल, सेकंड मिथाइल। इस कार्बन से कौन कौन अटैच था? CH3 एंड H। अब इसकी रिएक्शंस किससे कर दें? जिंक प्लस वाटर। वाटर किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा? इन ऑक्साइड फॉर्म, पेरोक्साइड फॉर्म, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसा क्लीवेज होगा? वाई पैटर्न। ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड हुआ? वाटर से। किसमें चेंज हो गया? पेरोक्साइड में। अब ये बाई क्लीवेज देखिए, इस कार्बन से कौन बॉन्डेड है? ऑक्सीजन। और क्या होगा? CH3। ये भी क्या है? CH3 प्लस ये C है, C से कौन बॉन्डेड है? CH3 H एंड O। बन गया।
एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। तो आपसे कहा गया कि एक एक्स एल्कीन है जिसका हमने ओजोनोलिसिस किया कंप्लीट, तो हमें एक मॉलिक्यूल्स एसीटोन का अनदर मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड का ऑब्टेन होता है। आप उस एक्स एल्कीन को आइडेंटिफाई कीजिए, अनदर एप्लीकेशन। चलिए और देखते हैं। अब आपसे कहा गया CH3 CH3 CO एक मॉलिक्यूल्स एसीटोन का मिलता है और सेकंड किसका मिला, चलिए उसको लिख दे रहे हैं। प्रोपिनल। तो आप जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या क्या मिलता है, एसीटोन और क्या मिलता है, प्रोपिनल। एसीटोन का आईपीसी नाम क्या है भाई, प्रोपेनॉन। तो उस X को आइडेंटिफाई कीजिए। आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन से कौन अटैच है, टू CH3 मिथाइल रेडिकल, मिथाइल ग्रुप CH3 और सेकंड कार्बन से कौन बॉन्डेड था, इथाइल एंड हाइड्रोजन, उसको ज्वाइन कर दिया C2H5 एंड H। अब क्या करेंगे, ये जो एल्कीन है कंप्लीट रिएक्शंस पूछी गई है तो क्या करेंगे, ओजोन से रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ओजोनाइड बनेगा। CH3 and double bond is break down and form of ozonoid। अब क्या होगा, अब इसकी किससे रिएक्शंस कर दें, जिंक एंड वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। इसका किस प्रकार से क्लीवेज होगा, वाई पैटर्न में। पहला मॉलिक्यूल्स किसका होगा, CH3CO CH3, ये कौन है, एसीटोन है। सेकंड क्या है, C2H5 CHO, ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, कौन सा है, प्रोपिनल। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, काउंट हो गया ना, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 पर CH3 है, 2 पर डबल बॉन्ड है। तो क्या नाम होगा उस एल्कीन का, 2 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, पेंट डैश 2 इन। तो देखो हमें केवल प्रोडक्ट दिया गया था, हमसे पूछा गया था उस एल्कीन को आइडेंटिफाई कीजिए और कंप्लीट रिएक्शंस को लिखिए। आपसे कहा गया एक्स इज एल्कीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका कंप्लीट जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वन इज एसीटोन, सेकंड प्रोपेनल। तो उस एल्कीन को आइडेंटिफाई कीजिए और ओजोनोलिसिस की कंप्लीट रिएक्शन लिखिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले एसीटोन को बनाया, फिर प्रोपेनल को बनाया। जैसे ही बनाया तो हमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, उस ऑक्सीजन को हटा दिया हमने दोनों की, और दोनों कार्बन के बीच में क्या किया, ओनली डबल बॉन्ड को फॉर्म कर दिया। तो क्या मिल गया आपको, 2 मिथाइल पेंट डैश 2 डैश इन, और उसका हमने कंप्लीट ओजोनोलिसिस दिखा दिया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।